Good morning, everybody. I'm Dr. Mukesh Parekh. Kindly show your presence so that we can start the class. And those who are watching me first time or the regular students, kindly like the video and write your comments at the end of the session and completely watch it so that you can get to know so many things. I can see only one face, that is of Kundan's. Kindly show your presence. Good morning, everybody. Good morning, good morning. Be ready with your notebooks. Today, I would like to talk about Eugene Ionesco. Write down. Eugene Ionesco. He was a Romanian French dramatist, and he belongs to the theatre of the absurd. And for last many net exams, we have been seeing that they have been asking us questions from different dramatists from the theatre of the absurd. Okay, I already had delivered 2-3 lectures on theatre of absurd. Theatre of the absurd is a post-World War theatre, post-World War, or say post-Second World War theatre. In this kind of theatre, the dramatist is mostly influenced by the philosophy of existentialism. Now, I think you all are aware about the philosophy of existentialism, and the most read play, highly anthologized, and mostly taught in the universities of India is the play that the Waiting for the Godot, waiting for the Waiting for Godot. There is no the before Godot. So, as you all know that in that famous play, Waiting for Godot. I'm so sorry, Waiting for Godot. Godot is a term for God. Okay, and there are two tramps, and they are waiting for God. And in the two acts play, we come to know that the person who is fixed or has been given his assignment to come ultimately did not appear in the play. Okay, so and in between the play we see that whatever they communicate goes awry, or say whatever they communicate does not have any meaning. तो आप सब लोग फटाफट जुड़ जाइए तो कि हम लोग क्लास को स्टार्ट करें. तो आज की जो क्लास है वो एक थिएटर ऑफ एब्सर्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है. उसका नाम है द चेयर. लिख लीजिए. यूजीन आयोनेस्को एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है. सैमुअल बैके के साथ में इनका नाम लिया जाता है. क्लियर? कीप राइटिंग यस इफ यू आर अवेयर व्हाट वी आर टीचिंग एंड यू आर सीरियसली अटेंडिंग द क्लास. ओके, अच्छा, ये जो प्ले है द चेयर्स, इसकी अगर मैं शॉर्ट में एक समरी बताऊं तो इसमें कुछ सीन्स हैं. ठीक है, और उन सीन्स में ओनली दो ही कैरेक्टर्स सामने आते हैं. एक 90 ईयर्स के एक हस्बैंड वाइफ हैं. उनका कोई नाम नहीं है प्ले में. देयर नेम्स आर ओल्ड मैन एंड ओल्ड वुमन. ओके, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उनकी एज क्या बता रखी है. उनकी एज बता रखी है 90 ईयर्स. ठीक है, और प्ले में कुछ ऐसी बातचीत से हमें पता चलता है कि उन्होंने एक ओरेटर को आज बुलाया है अपने घर में. They have arranged for an orator, and that orator will be addressing the people. So they are arranging, for that particular program in their house. अच्छा, उनका हाउस कहाँ है ये भी एक बहुत, it's very typical setting actually, which is also strange as well as absurd. क्योंकि देखो, जो absurd theatre of absurd होता है उसमें कुछ चीज़ें absurd के साथ साथ, और absurd क्या होता है? absurd होता है जो चीज़ हमें बहुत अजीब लगे, जो हमें बहुत ज़्यादा strange लगे. तो एक या तो समुद्र है या कोई झील है, उसके बिल्कुल बीच में इनका घर है टापू पे. ठीक है, और इसमें स्टेज सेटिंग ऐसी दिखा रखी है दैट देयर आर 2 विंडोज, एंड नियर द विंडोज देयर आर 2 स्टूल्स, एंड सर्टेन चेयर्स आर देयर. ठीक है, एंड द सेटिंग ऑफ द स्टेज इज सेमी सर्कुलर. दिस सेमी सर्कुलर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्या do you get any idea if the stage on which the orator, the imagined orator will come and speak, has been arranged, or the chairs have been arranged in a semicircular way, so that you can understand semicircular stage, और इसके सामने ऑडियंस भी सेमी सर्कुलर में बैठी है, so then it completes the whole circle. ठीक है,
सो दिस सर्कल इज द रेपिटेटिव प्रेजेंट, क्योंकि पूरे प्ले के अंदर वी कम अक्रॉस। पहले आप मुझे यस लिख के बताइए कि आज आपको मेरा लेक्चर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हालांकि मैंने अभी स्टार्ट ही किया है। डिड यू रियली अंडरस्टैंड दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट थिएटर ऑफ एब्सर्ड, and we are discussing Eugene Ionesco, who was a Romanian French playwright who wrote under this category of theatre of the absurd. Yes लिख के बताइए so that I can continue with the class. Okay, ठीक है। अच्छा, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड के बारे में मैं बता रहा था, इसकी थोड़ी कहानी डिस्कस कर रहा हूं पहले मैं। हालांकि you will be surprised to know that most of these plays who are written under the category of this theatre of the absurd, they don't have a well defined story. उनकी कोई स्टोरी नहीं होती है। अच्छा, इसमें सिंबॉलिकली बहुत कुछ दिखाया जाता है, एंड tropes are there, metaphors are there, even their dialogues are quite symbolic, and we need to understand that what the writer wants to convey. ओके, वो सिंबॉलिकली क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो एक छोटा सा प्ले है जिसमें एक ओल्ड मैन और एक ओल्ड वुमन, अच्छा, उनकी आइडेंटिटीज को हाइड किया है और उनको केवल उनको नाम नहीं दिया है, विदाउट नेम्स, दे आर ओल्ड वुमन एंड ओल्ड मैन, और वो 90 ईयर्स के हैं। और उनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि वो मोर देन 90 ईयर्स के तो वो हैं, और मोर देन 70 ईयर्स से वो इस जगह पर रह रहे हैं। ओके, और वो किसी गार्डन से निकल करके बड़े घबराते हुए, कठिन रास्ता पार करते हुए वो यहाँ तक पहुंचे हैं। सो सबसे पहले हमें ये पता चलता है कि एक आदमी और एक औरत की जो कास्ट रखी गई है इसमें, दैट समहाउ गिव्स अस अ क्रिश्चियन अल्यूजन तो समझते हैं ना आप लोग, अल्यूजन ऑफ एडम एंड ईव, ठीक है। और गार्डन से ये निकल के आए हैं, तो इसका मतलब है दैट वी कैन अंडरस्टैंड दैट इट इज द गार्डन ऑफ ईडन। तो ये सेटिंग हमारे समझ में आती है, ठीक है। फिर उसके बाद में वो गेस्ट की इंतजार कर रहे हैं, आज एक ओरेटर आएगा, और वो गेस्ट सब इनविजिबल हैं। उस पूरे प्ले की खास बात क्या है कि उसमें कोई आता नहीं है, ये सब कुछ इनके दिमाग में चल रहा है। ओके, और ये आपस में बात करते रहते हैं, और ये जो बूढ़ा आदमी है ये अपने आप को बीच बीच में ऐसे समझता है जैसे कि इनके कोई लड़का था 7 साल का और वो मर गया, और इसको ऐसे लगता है कि ये एक अच्छा लड़का नहीं था अपने पेरेंट्स का। ये जो आपस में बात करते रहते हैं, ठीक है। तो एक फैमिली डिसइंटीग्रेशन, फैमिली इररिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब की थीम चलती है प्ले के अंदर, ठीक है। और प्ले में लास्ट में होता इतना सही है कि इमेजिनरी तरीके से फिर बार बार बेल बजती है, ये लोग एक एक करके गेस्ट को एंटरटेन करते हैं, एंड थ्रू आउट द प्ले दे हैव बीन अरेंजिंग चेयर्स, इसीलिए इस प्ले का नाम है चेयर्स। ओके, और वो एक एक करके गेस्ट आते हैं। सबसे पहले एक लेडी आती है, फिर उसके बाद में एक फोटो फ्रेम करने वाला आदमी आता है, जिसको ये जो ओल्ड वुमन है ये डॉक्टर समझती है और इससे अपनी बातचीत करती है। और जैसे हमने द बर्थडे पार्टी में देखा था ना कि वो जो जो हमारी प्रोटैगनिस्ट तो मैं नहीं कहूँगा, एक ओल्ड वुमन है, उसमें वो बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअल कॉनोटेशंस के साथ वाले डायलॉग्स बोलती है। बिल्कुल इसी तरह से इस प्ले के अंदर भी ये जो 90 इयर्स ओल्ड वुमन है, ये उस फोटो फ्रेमर को डॉक्टर समझ करके उसके साथ में फ्लर्ट करती है काफ़ी देर तक। फिर और दूसरे गेस्ट आते हैं और ये भाग भाग के एक दूसरे कमरे में से चेयर्स लाते रहते हैं। और फिर बाद में एम्परर आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एम्परर आता है तो ये एम्परर के सामने झुकते हैं और ये कहती है कि एम्परर ने मुझे विंक किया है, मतलब आंख मारी है, वो अपने हस्बैंड को कहती है। सब लोग ये दोनों स्टूल पे चढ़ जाते हैं क्योंकि इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई है कमरे में, एंड दे कंप्लेन दैट एवरीबडी विल नॉट बी गिवन अ प्रॉपर प्लेस एंड द चेयर्स आर स्कैंट इन नंबर। ये सब ब्लेम करते हुए किसी तरह से ये प्ले आगे बढ़ता है। और लास्ट में दे हैव बीन, एज आई टोल्ड यू दैट दे हैव बीन वेटिंग फॉर एन ओरेटर। अच्छा, इसके बारे में भी हमें पता चलता है कि ये जो ओरेटर इन्होंने अरेंज किया है, ये ओरेटर इस ओल्ड मैन की एक डिस्कवरी है, और ये इन सबको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताएगा सबको आकर के। और अगर ये काम हो जाता है, ये प्रोग्राम अगर सक्सेसफुल हो जाता है, तो ये फील करता है कि मैं अपनी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट वर्क कंप्लीट कर लूंगा। और फिर ऐसा दिखाते हैं कि वो ओरेटर आता है और ओरेटर के आने के तुरंत बाद ये जब अपनी स्पीच देना चाहता है, उससे पहले ही ओल्ड वुमन और ओल्ड मैन अपने स्टूल के ऊपर जो बैठे हैं वो बिल्कुल उन विंडोज से नीचे कूद के और सुसाइड कर लेते हैं।
क्योंकि मैंने बताया कि इनका जो घर है वो एक स्मॉल आइलैंड के ऊपर है जिसमें चारों तरफ पानी है। आइलैंड भी मैं नहीं कहूंगा, बस यू जस्ट इमेजिन दैट इन अ वेरी एब्सर्ड सिचुएशन दैट हाउस सम हाउ रेस्ट्स ऑन अ पीस ऑफ लैंड, और चारों तरफ पानी ही पानी है, और ये दोनों जने कूद करके और सुसाइड कर लेते हैं। ये कहानी है, मतलब नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट द इम्प्लीकेशंस एंड डीपर मीनिंग्स ऑफ देयर सुसाइड एंड ऑल। और उसके बाद में ये जो ओरेटर है उसके बारे में हमें क्या पता चलता है कि ओरेटर इज डेफ एंड डम, ये बोल नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है। राइटर का नाम है यूजीन, EUGENE, EUGENE, यूजीन आयोनेस्को, IONOSCO, आयोनेस्को। यूजीन आयोनेस्को एक बहुत ही फेमस नेम है। इन्होंने द बॉल्ड सोप्रानो लिखा है, इन्होंने राइनोसरस लिखा है। इन तीनों पे बार बार क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, जितने भी स्टूडेंट्स जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं मेरी क्लास के, उनको मैंने ऑलरेडी स्टडी मटेरियल दे रखा है। तो आपको जो एक पीडीएफ, 2 पीडीएफ मिले हैं ड्रामा को लेकर के। एक आपको मेरे ख्याल से एमसीक्यूज मिला है और एक आपको मिला है रियल पीडीएफ। इन दैट आई हैव ऑलरेडी गिवन 2 इंपॉर्टेंट और 3 इंपॉर्टेंट ड्रामाज एंड डिटेल्ड समरीज एंड अदर थिंग्स रिलेटेड टू दिस यूजीन आयोनेस्को। आप उसको जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ये 1 तारीख को जब एग्जाम है तो आपको हो सकता है कि इनमें से ही कोई क्वेश्चन आ जाए। ठीक है। अच्छा, तो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि वो जो ओरेटर आता है, नाउ वी कम टू नो दैट ही कैन नॉट स्पीक। उसको वो डेफ एंड म्यूट है। ओके, और वो एक बहुत ही ज्यादा इनकॉम्प्रिहेंसिबल अजीब सी आवाजें मुंह से निकालता है। और इन बिटवीन हमें वो जो ओल्ड मैन और ओल्ड वुमन कूद गए हैं खिड़की से बाहर, उनके बॉडीज के डूबने की, जब कोई डूबता है तो उसके पानी के बबल्स वगैरह निकलते हैं, उन सब की आवाजें भी साथ में आ रही हैं। और ऐसे प्ले खत्म हो जाता है। और वो लास्ट में क्या लिखता है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि वो एक ब्लैक बोर्ड लगा रखा है स्टेज के ऊपर, उस स्टेज के उस ब्लैक बोर्ड के ऊपर वो जो फिलोसोफर, वो जो ओरेटर आया है, वो अपने कुछ वर्ड्स लिखता है। तो वो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वो क्या लिखता है लास्ट के अंदर। ठीक है, लिख लीजिए। वो लिखता है एंजल फ्लड। वो बोर्ड के ऊपर एक वर्ड लिखता है, वो है एंजल, ANGEL FLOOD, एंजल फ्लड। ठीक है। उसके बाद में वो बहुत सारे नॉनसेंस वर्ड्स लिखता है स्टार्टिंग विद N फॉर नेस्ट। ठीक है। ही राइट सो मेनी वर्ड्स, नॉनसेंसिकल वर्ड्स, they start with N, and we all understand that theater of absurd और existentialism से related जो कहानियां, प्लेज वगैरह होते हैं, उनमें बहुत सारी चीजें absurd दिखाई जाती हैं। They are literally absurd, and sometimes we come to know their meaning is absurd. ठीक है। And they symbolize the absurd condition of human being, on this planet. ठीक है। और लास्ट में वो लिखता है, लिखो edu। आपको ये क्वेश्चन भी आएगा। लास्ट में वो ब्लैक बोर्ड पे लिखता है एड्यू। एड्यू का मतलब पता है आप लोगों को? एड्यू मतलब किसी को बाय बाय कहना। तो एड्यू की जो पहला एड्यू है उसकी स्पेलिंग, अच्छा, वो कैपिटल लेटर्स में लिखता है। हर चीज लिख लीजिए। ही राइट्स एवरीथिंग इन कैपिटल लेटर्स। ओके। एंड फॉर एड्यू आपा, एड्यू आपा, वो जो पहला एड्यू है उसमें डबल ए है स्टार्टिंग में, ADIEU एड्यू। सेकेंड एड्यू में एक ही ए है, और फिर वो लिख देता है आपा। लिखना है उसको पापा, लेकिन वो लिख देता है आपा। तो P इज मिसिंग। ठीक है। ऑन द लास्ट A इज विजिबल ओनली, बिकॉज ऑल द अदर लेटर्स आर वेरी zigzag एंड नॉन लीनियर। मतलब कि वो जो ओरेटर आता है बोलने के लिए, अब ये मैंने प्ले को पूरा एक बार हल्की सी समरी के तौर पे आपको बता दिया। अच्छा, इन बिटवीन देयर कम्स द रेफरेंसेस ऑफ वर्ल्ड वॉर। पेरिस का रेफरेंस बार बार आता है, इनकी लाइफ के स्पॉइल हो जाने का मीनिंग बार बार आता है। ठीक है। ऐसे करके ये प्ले है विच हैज अ सेटिंग ऑफ नॉनसेंसिकल थिंग्स। ठीक है। अब इसमें आता है कि व्हाट दिस प्ले इज ऑल अबाउट। So then there are different interpretations of this play, that what the writer wanted to convey. As you all know, if we read about Eugene Ionesco, first of all, I would like to tell you that Eugene Ionesco is a writer who has written other plays also. Write down The Bald Soprano. The Bald, BALD, The Bald Soprano, 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 Rhinoceros. Okay, those who have come late, I will upload this video on YouTube. They can watch it there, clear, right from the beginning. And
You will be surprised, he also has written a play, Macbeth. The spelling of Macbeth is different, Macbeth, Macbeth. This Macbeth is a kind of, is making fun, or you can understand it's an existential response of Eugene Ionesco to Shakespeare. In that also he has shown us Banquo and Macbeth, and the way they have been shedding blood around. Clear? So I repeat, he has written, other than these, he has also written so many other plays, but these are some of the famous plays. The Bald Soprano, राइनोसरस के बारे में आपको पता होना चाहिए. राइनोसरस में क्या होता है कि लगभग इसके सारे फ्रेंड्स राइनोसरस बन जाते हैं. अगेन देयर इज अ absurd situation the writer has created. Clear? Macbeth, there is a lot much bloodshed. तो हमें पता होना चाहिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में द थीम ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म वाज लूमिंग लार्ज एक्चुअली. ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए. अच्छा, यूजीन आयोनेस्को पे एक क्वेश्चन और आ सकता है आपको, कि जैसे हमने देखा है कि बर्नार्ड शॉ हैं. यू ऑल आर अवेयर दैट बर्नार्ड शॉ यूज्ड टू राइट एपिलॉग्स एंड prologues and epilogues, in his plays. These epilogues and prologues of Bernard Shaw's, they were actually his criticism. That was his response, to the critics. Suppose उन्होंने कोई ड्रामा लिखा और किसी क्रिटिक ने कुछ कहा, तो he used to answer those critics, by writing in the preface. And as you all are aware that Bernard Shaw's plays are called problem plays. ठीक है, इसी तरह से आपको मालूम होना चाहिए बर्टोल्ट ब्रेश्ट हैं, उन्होंने भी अपने प्लेस के अंदर ही क्रिटिसिज्म को रखा. बिल्कुल इसी तरह से यूजीन आयोनेस्को कहीं ना कहीं अपने प्लेस के अंदर क्रिटिसिज्म भी करते हैं, लेकिन उन्होंने अलग से भी अपने क्रिटिक्स के ऊपर कुछ लिखा है. देखो, मोस्टली व्हाट हैपेंस व्हेन अ ड्रामेटिस्ट और अ नॉवेलिस्ट और अ पोएट राइट समथिंग, क्लियर, देन व्हाट हैपेंस दैट क्रिटिक्स मोस्टली क्रिटिसाइजेस दैट पर्सन. ज्यादातर तो क्या होता है कि हम क्रिटिक्स को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं. जैसे मैं एक राइटर हूं सपोज, और मैंने कुछ लिखा और क्रिटिक ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझ करके उसका क्रिटिसिज्म कर दिया. अब ज्यादातर जो राइटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, दे नेवर रिस्पॉन्ड टू द क्रिटिक्स. लेकिन इन्होंने एक बुक लिखी है, मतलब उनके जितने भी क्रिटिसिज्म के वर्क्स हैं उनका एक बुक बन गया है, उसका नाम लिख लीजिए, नोट्स एंड काउंटर नोट्स. सो दे माइट आस्क यू इन दिस एग्जाम. यस लिख के बताइए दैट यू आर अटेंडिंग द लेक्चर सीरियसली, एंड दोज हु आर वॉचिंग इट ऑन यूट्यूब, काइंडली राइट अ कमेंट आफ्टर वॉचिंग इट. Okay, there is no need to write comment on Facebook, but if you are watching it on YouTube, then please write certain comments. Clear? And what kind of other videos you require from me, you can also write there. And you should like the video also. I've seen that people don't like videos when they watch it, when I upload it on YouTube. अच्छा, चलिए बताइए. ठीक है, you are attending the class seriously. I have got 2 yes. ठीक है, क्या लिखवाया मैंने, notes and counter notes. This is a format of a kind of book in which we come to know about Eugene Ionesco's responses. Okay. अच्छा, उनका एक नॉवल भी फेमस है. उन्होंने एक नॉवल लिखा था जिसका नाम था द हर्मिट. His novel's name is द हर्मिट. ठीक है. अच्छा, इसमें जो डायलॉग्स हैं वो अब मैं वापस से प्ले पे आ रहा हूं. ये जो प्ले का नाम है हमारा चेयर्स. अच्छा, ये चेयर्स जो है वो लिखा गया था 1952 में. सो यू कैन अंडरस्टैंड द डेट ऑफ राइटिंग ऑफ दिस प्ले कोइंसाइड्स विद द इफेक्ट्स ऑफ द पोस्ट वर्ल्ड वॉर. ठीक है. अच्छा, फिर इस प्ले में क्या बात कर रहा है, आपको क्या समझ में आया बताओ. कि 2 बुजुर्ग लोग दिखाए हैं, वो कैसे दे कमिट सुसाइड, एंड द स्टेज इज सेमी सर्कुलर, द चेयर्स आर आल्सो अरेंज्ड इन अ सर्कुलर मैनर. ठीक है. और पूरे प्ले के अंदर बार बार रेफरेंसेस आते हैं उनकी फेलियर्स ऑफ लाइफ की. ठीक है. मैंने 2 बार स्पेलिंग बोल दिए भाई. यूजीन, EUGENE, यूजीन. यूजीन का जरूरी नहीं है कि यू से ही स्टार्ट हो, ई से भी स्टार्ट होता है. जैसे यूफोरिया है तो वो ई से स्टार्ट होता है ना. जैसे यूनक बोलते हैं जब हम यूनक बोलते हैं तो स्पेलिंग तो ई से लिखते हैं ना. यूजीन, EUGENE, यूजीन. आयोनेस्को, IONESCO, आयोनेस्को, यूजीन आयोनेस्को. For God's sake, write yes if you have written the spelling. And if you are unable to write the spelling, it means you have not been checking your PDFs.
अगर आपने पीडीएफ देखा होता तो आपको यूजीन आयोनेस्को की स्पेलिंग आती। ठीक है, अब मैं स्पेलिंग पे ज्यादा बड़बड़ नहीं करूंगा, नहीं तो आप कहोगे कि समय से पहले ही हैज गॉन सेनाइल। चलिए, एक इसमें अच्छा, इसमें पूरे प्ले के अंदर बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिनको अगर मैं बताने बैठूं तो पूरा दिन बीत जाए। ये जो ओल्ड मैन है, ही कंसिडर्स दैट हिज वाइफ इज हिज मदर नाउ। क्लियर? सो वाइफ एंड मदर फिगर, यू नो, देर आर रिकरेंट पैटर्न्स। तो फिर वो वाइफ उसको कहती है कि नो, आई एम नॉट योर वाइफ, आई एम नॉट योर मदर, आई एम योर वाइफ। हालांकि वो उसके गोद में सिर रख करके और वो उसको ऐसे लोरी सुनाती, ललबी। उस ललबी के भी आप नाम लिख लीजिए, पेरिस विल ऑलवेज बी पेरिस, एंड देयर कम्स ऑलवेज द रेफरेंसेस ऑफ द सिटी पेरिस। ठीक है, पूरे प्ले में पेरिस के रेफरेंसेस आते हैं। और क्या बताया मैंने आपको इस प्ले के बारे में? एवरीबडी इज इनविजिबल। ओके, वट एवर कम्युनिकेशन विद द गेस्ट इज गोइंग ऑन, दैट इज इन देयर माइंड। अच्छा, अब एक बात बताइए कि उनकी सुसाइड जो है वो किस चीज की ओर इशारा करती है? दैट यू नो गिव्स अस अ हिंट दैट दिस वर्ल्ड इज इनकम्प्लीट। हालांकि उन्होंने 90 साल की एज को जिया है, बट यू नो स्टिल दे डोंट फाइंड मीनिंग इन देयर लाइफ। ओके, अच्छा, फिर पूरे प्ले में देयर कम्स द रेफरेंसेस ऑफ मेमोरी। लिखो, लिख लीजिए, देयर कम्स द रेफरेंस ऑफ मेमोरी। अच्छा, मेमोरी के आधार पर जब वो बातचीत करते हैं तो समटाइम्स यू नो दे आर एबल सक्सेसफुली टू रिकॉल समथिंग, एंड समटाइम्स यू नो दे फेल टू रिकॉल समथिंग। So that is something very very important in all the post modern literature. देखिए, जितना भी पोस्ट मॉडर्निज्म लिटरेचर होता है उसमें मेमोरी को फैलिएबल बताया गया है। दैट यू नो दिस ह्यूमन बीइंग इज इनकम्प्लीट, ओके, दिस लाइफ इज अ काइंड ऑफ बर्डन, लाइफ इज मीनिंगलेस। ठीक है, मेमोरी इज मीनिंगलेस। ठीक है, अच्छा, फिर फिलॉसफी। अच्छा, एक बात और पता होना चाहिए कि जो इनके गेस्ट हैं उनमें कौन शामिल है। तो लिखो, न्यूज़पेपर मैन एंड इंटेलिजेंसिया। इंटेलिजेंसिया का मतलब होता है ऑल द इंटेलेक्चुअल्स ऑफ द प्लेस वेयर एवर दे आर लिविंग। सो दे हैव स्पेशली इनवाइटेड द इंटेलिजेंट पीपल, मीन्स इंटेलेक्चुअल्स ऑफ द सोसाइटी, एंड द सेकेंड वन इज द न्यूज़पेपर मैन। ठीक है, अब आप अगर इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ोगे मेरे नोट्स को, तो आपको उनमें मैंने ये सारी बातें दे रखी हैं। There, I think the writer wants to convey a message कि जो इनकम्प्लीटनेस है हमारी, कि राइटर ये बताना चाहता है कि ये जो ओल्ड मैन है, he cannot give his message to the world, he relies on the orator to give his message। इसका क्या मतलब है कि somehow you know we depend on language। और इस प्ले के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, वो कहता है कि आई कांट से विद माई वर्ड्स एनीथिंग, ओल्ड मैन बोलता है, बिकॉज आई डोंट गेट आइडियाज। सो इट्स क्वाइट इनकम्प्लीट थिंग। देखिए, आइडियाज आर डिपेंडेंट ऑन वर्ड्स एंड वर्ड्स आर स्टफ्ड विद आइडियाज। सो डोंट यू थिंक लाइक यू नो बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। वी कैनॉट गेट आइडियाज विदाउट वर्ड्स, इजंट इट? और अगर हमारे पास वर्ड्स नहीं है, इसका मतलब हमारे पास आइडियाज नहीं है। तो इस प्ले के अंदर you know they are always talking about destruction, they are always talking about you know incomplete life, they are always talking about you know their dead child। हालांकि जैसे ही वो आदमी अपने बच्चे की बात करने लगता है तो वो उसको रोक देती है। अच्छा, अगेन वी कैन imagine and that you know everything is in their mind। so again this play talks about the dichotomy of illusion versus reality। देखिए, illusion versus reality का जो कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इससे पहले मैं एक बात कहना ही भूल गया, जब भी मैं कोई आपको एग्जिस्टेंशियल प्ले पढ़ाऊं, whenever I'm talking about any play which is based on the Western themes of post-World War or based on existentialism, you should always remember one thing, that existentialism is a Western philosophy. Okay, it has never been an Eastern philosophy। हालांकि यूजीन आयोनेस्को is quite a better playwright। यूजीन आयोनेस्को जो है वो बाकी के जितने भी प्ले राइट्स हुए हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म में, उनमें काफी पॉजिटिव है। हालांकि मुझे ऐसा कहते वक्त ऐसा लगता है कि अगर मैं और डिटेल में बाकी के राइटर्स भी आपको बताऊं, सैमुअल बेके की अगर हम बात करते हैं, सो नो दे आर शोइंग इमेजेस ऑफ इनकम्प्लीटनेस, they are showing the images of the absurdity of the world, they are showing the images of the incompleteness of the human existence। Okay,
They talk about the incompleteness of the religion. Okay, they show that history is incomplete. They show that language does not fulfill the purpose. They show that silence is more important than the communication. Clear. And they also show symbolically the existence of human being in a particular closed room. Thank God इस प्ले में तो दो खिड़कियां तो है, but these windows are again leading towards water, and where you can't live because that water is stagnating. पूरे प्ले में एक रेफरेंस आता है, this water is stagnating, and the woman keeps asking her husband, like close the windows because the mosquitoes are troubling her, or the stench of the stagnating water is so इसका मतलब है कि the symbol of water, the symbol of closed room किस चीज की ओर इशारा करता है बताओ? Closed room shows डेथ लाइक सिचुएशन, क्योंकि जब हम क्रिश्चियंस की बात करते हैं तो दे आर बैरिड इन अ कॉफिन. ओके, तो जैसे हम सिल्विया प्लैथ की पोएम्स पढ़ते हैं, या हम अमेरिकन राइटर्स है ना, क्या नाम है उनका, नाम बताइए, जिन्होंने डेथ के ऊपर बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं. अमेरिकन राइटर, फेमस राइटर हु रोट मैनी पोएम्स ऑन डेथ, एमिल डिकिंसन, आपको नाम याद नहीं आ रहा है, जिनकी पोएम्स आर मोस्टली बेस्ड ऑन डेथ एंड एग्जिस्टेंशियल एंग्स्ट इन हर लाइफ. सो इस प्ले के थ्रू मैं बताना चाह रहा हूं कि देयर इज सम पॉजिटिविटी. हालांकि वो पॉजिटिविटी भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी में बदल जाती है, क्योंकि क्लोज्ड विंडोज मींस you have an escape, clear, but that escape gets when they get drowned, they commit suicide. We come to know that that escape is also futile. इसका मतलब है कि जो इंसान है, अच्छा, इसमें दो तीन चीजें ऐसी दिखा रखी हैं which are very good symbols. For example, when the imaginary guests come, there comes नहीं, सिल्विया प्लेथ का नाम तो मैंने ले दिया है, विवेक चंद्रा. I was talking about Emily Dickinson also, because Emily Dickinson has also written poems on death. Okay, and इसमें एक बच्चा भी आता है उनके साथ में, तो ये शायद आपको वो पूछ सकते हैं. ठीक है, तो फिर दो का जो सिंबल है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी लुक एट द स्टोरी मेटामॉर्फोसिस, आपने मेटामॉर्फोसिस का नाम सुना होगा. Metamorphosis, that novella, we cannot exactly call it a story because it crosses the limit of the 500 words. Clear? So आर्थर मिलर ने नहीं लिखा है. आर्थर मिलर एक अलग तरह का राइटर है. आर्थर मिलर डज नॉट राइट अबाउट एग्जिस्टेंशियलिज्म. सुनील निषाद, रॉन्ग आंसर. आई वाज टॉकिंग अबाउट द वुमन राइटर, दैट इज जोहान डॉन ऑल्सो. गलत. आप क्या कर रहे हो पता है? आप इधर उधर से कोई आंसर देख करके लिख रहे हो, जबकि आपको पता होना चाहिए, अगर आप लेक्चर को ध्यान से अटेंड करोगे, यू विल कम अक्रॉस दैट if I talk about Sylvia Plath, then only one writer, that is Emily Dickinson, can be associated with Sylvia Plath, because these are the only two poets who are women, and they are talking about that womanly feminist angst of existentialism, जो उनके ऊपर looming large in their physical circumstances. चलिए, मैं आपसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता हूं, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस के आंसर मुझे रॉन्ग ही मिलते हैं. तो क्या समझ में आया बताओ इस प्ले के बारे में, कि ये प्ले के अंदर आपको कोई ना कोई क्वेश्चन वो पूछ लेंगे, वो बार बार पूछते रहते हैं कोई ना कोई क्वेश्चन. ठीक है, अच्छा, ओरेटर जो है वो डम एंड डेफ है, और वो आकर के कोई मैसेज नहीं देता है. एंड दे हाँ, सॉरी, मैं काफका के बारे में बता रहा था, श्वेता ने मुझे याद दिला दिया. काफा लिखा है आपने, ये काफका है. काफका की नॉवेला है, नाम है उसका मेटामॉर्फोसिस. मैं पहले भी अपने लेक्चर में उसका नाम ले चुका हूं. दैट इज ऑल्सो अ वर्क विच इज वेरी फेमस, एंड रेकरेंटली दे हैव बीन आस्किंग अस क्वेश्चंस ऑन फ्रांज काफका, FRANZ, फ्रांज काफका. फ्रांज काफका ने मेटामॉर्फोसिस जो स्टोरी लिखी है, उसमें देयर इज अ सिंबल ऑफ 3, क्योंकि देखो उसमें 3 टेनेंट्स आते हैं जो बच जाते हैं. काफका, ये जो हमारा ग्रेगर जामजा के मरने के बाद में जो मेंबर्स बच जाते हैं, वो भी 3 हैं. सो देयर इज अ सिंबल ऑफ 3. क्लियर? इन द सेम मैनर के अंदर देयर इज अ सिंबल ऑफ 2. ओके, और एडम इव का भी कॉन्सेप्ट हो सकता है. इसमें इनकम्प्लीटनेस ऑफ लाइफ का सिंबल हो सकता है. लेकिन राइटर ने ऐसे कहा है कि दिस प्ले समहाउ गिव्स अस अ मैसेज ऑफ पॉजिटिविटी, दैट आप क्या करो, बीस्ट फिबल नहीं है ये,
आप एक तो इंटरनेट मत चेक करो अभी सुनील निषाद जी, ओके, यू जस्ट लिसन टू मी। ये एग्जैक्टली बीस्ट फेबल नहीं है, काफका ने इंसान क्रिएट किए हैं, उसमें तो केवल वो सररियलिज्म सररियलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा जो हीरो है मेटामॉर्फोसिस में, वो एक बहुत बड़ा बग बन जाता है। लेकिन मैं डाइवर्ट नहीं होऊंगा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो क्या बात कर रहे हैं सर, ऊपर से ऑनलाइन क्लास है, आई वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड, आई वोंट बी एबल टू सी योर फेसेस, तो मैं बता सकूं आपको। चलिए, अच्छा, इसमें मस्किटोज का रेफरेंस आ ही गया, मैंने बता ही दिया आपको। और मैं बात कर रहा था, आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट द मैसेज दे आर वेटिंग, वुड बी डिलीवर्ड बाय द स्पीच विच इज they have been waiting for. When the orator comes and he delivers his speech, तो वो तो बोल ही नहीं सकता, और उससे पहले ये अपनी सुसाइड कमिट कर लेते हैं। ये कहते हैं, ओल्ड मैन कंसिडर्स दैट द पर्पस ऑफ माई लाइफ इज नाउ ओके एंड नाउ आई कांट लिव मोर, और वो कमिट कर लेता है सुसाइड। अच्छा, अब क्या होता है कि आप इस प्ले में देखिए कि जो ओरेटर है वो बोल ही नहीं पा रहा, इज अनेबल टू कम्युनिकेट हिज मैसेज प्रॉपरली, और वट एवर ही राइट्स इज ऑल्सो नॉन सेंसिकल, ओके। और वो जो लिखता है अड्यू अड्यू पापा, अड्यू अड्यू आपा लिखता है, एज आई टोल्ड यू दैट वो स्टार्टिंग ए इज मिसिंग। तो उसमें देयर कम्स अ रेफरेंस इन द प्ले कि ये जो ओल्ड मैन है ये कहता है कि माई मदर डाइड इन अ डिच एंड आई कुड नॉट हेल्प। तो वो वाइफ उसको रोक देती है, ऐसे मत बोलो, बिकॉज यू हैड बीन अ वेरी गुड बॉय, यू हैड बीन अ वेरी गुड सन। और उनका खुद का बेटा भी है, उनको एक्यूज करते हुए घर छोड़ के चला जाता है बचपन में। तो समवेयर द लीविंग ऑफ अ चाइल्ड और इररिस्पॉन्सिबिलिटी का भी एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और वो जो शायद इनके दिमाग में सबकॉन्शियस में एक बच्चा है। अच्छा, ये जो अमेरिकन प्लेज होते हैं या ज़्यादातर फ्रेंच प्लेज होते हैं या जो एग्जिस्टेंशियलिज्म से जो रिलेटेड प्लेज होते हैं, इनके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, दैट इज इमेजिनेशन से चीज़ों को क्रिएट कर लेना। अच्छा, आपको याद है एक प्ले, अमेरिकन प्ले, इन विच imaginary child they are having in their conversation, and ultimately that child is killed imaginary। बताओ कौन सा प्ले है? दिस इज अ क्वेश्चन। क्या पता आपको ये एज इट इज क्वेश्चन पूछ लें। विच फेमस पुलित्जर प्राइज विनर अमेरिकन राइटर, ही वाज अवॉर्डेड आई थिंक पुलित्जर प्राइज फॉर 3-4 times। in that play there comes a reference of a boy or a child which is imaginary, they don't have children। किसी को याद है तो बताओ, नहीं याद आ रहा है, मैं बता देता हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हुए हैं, उनका नाम आप खोजिए, ड्रामा का नाम लिखिए, हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, लिख लीजिए, हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। इसके 3 सेक्शंस हैं। इनके अंदर एक अमेरिकन कपल है जो यूनिवर्सिटी में काम करता है, हस्बैंड, उस उनके कपल के बच्चा नहीं है, एंड वो एक फैमिली को इनवाइट करते हैं अपने घर में, एंड देन टू हर्ट ईच अदर दे प्ले अ गेम, एंड इन बिटवीन द गेम द हस्बैंड ही वांट्स टू हर्ट हिज वाइफ, एंड वो अपने इमेजिनरी बच्चे को मार देता है। हालांकि उनके घर में बच्चा नहीं है, बट दे कीप टॉकिंग अबाउट के आज वो खेलने गया था, आज उसके 10वीं का एग्जाम है, उसको ये पसंद है, उसको वो पसंद है, बट एक्चुअली दे डोंट हैव अ चाइल्ड, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि मॉडर्निटी, पोस्ट वर्ल्ड वॉर इकोनॉमिक कंडीशंस, अंदाजा लगाइए कि पैसा ज़्यादा नहीं है, लोग बाग अपनी फैमिली को इस तरह से प्लान करने लगे हैं कि दे डोंट वांट चिल्ड्रन, ओके। तो बट देयर इज अ नेचुरल फीलिंग ऑफ हैविंग चिल्ड्रन, क्लियर। सो यू हैव टू क्रिएट योर ओन चिल्ड्रन इन योर सबकॉन्शियस माइंड। एडवर्ड एलबी का प्ले है, श्वेता ने सही बताया। अच्छा, मुझे देखो लेक्चर में 2-3 बातें बतानी है आपको, सो दैट यू पीपल कैन रियली अंडरस्टैंड एंड रिलेट विद दिस प्ले। These conditions have started, coming, and these conditions have started showing their face in Indian context also. देखो, एक बात बताओ मुझे कि आपको नहीं लगता है धीरे धीरे हम लोग इतना ज़्यादा महंगाई को फेस करने लगे हैं कि लोग अपने फैमिली को प्लान करने लगे हैं, फ्रॉम कैथोलिक पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम हिंदू पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम a real Muslim point of view, aborting a child is a great sin, ठीक है। फैमिली प्लान करना किसी भी रिलीजन में नहीं लिखा हुआ है, ओके। सो द मोमेंट वी आर बिकमिंग सक्सेसफुल एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड सक्सेसफुल पीपल,
अर्बनाइज्ड पीपल, जितना ज़्यादा हम ऐसे होते जा रहे हैं, आपको मालूम है वी आर लिविंग अ वेरी स्टेराइल लाइफ इमोशनली। हमारे लिमिटेड बच्चे होते हैं, एक या दो, ओके उन बच्चों को हम मैकेनिकली पालते हैं आजकल, ओके वी डोंट हैव मच मनी, mostly to husband and wife both have their income, so mostly they are busy in earning their income, and we are away from the natural happiness which I think is or which can be had by family life. तो ये जो plays हैं somehow they are giving a hint that how industrialized person or say whatever growth we have done, you know, after this industrialization, ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ हमने की है, ये जो अर्बनाइजेशन की ग्रोथ हमने की है, इससे हम धीरे धीरे उल्टा और ज़्यादा ब्रूटल होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सैवेज होते जा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि हम मानसिक रोगी हो गए हैं, वी आर मेंटली सिक पीपल नाउ, though we consider that you know we have almost everything which we claim that that is necessary to live a very successful and a comfortable life, but anyhow these things of comfort and these things of the which are the hallmark of success have ultimately made us cruel, barren, insensitive and unemotional, less sensible, okay, devoid of common sense, away from humanity, irreligious, less spiritual। कितने सारे वर्ड्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं कि अगर हम मैकेनिकली देखेंगे, क्योंकि देखो एंड लेस चैरिटेबल ऑल्सो, आप किसी की मदद नहीं करते हो, आपको ऐसे लगता है कि इफ यू नो वी गो आउट ऑफ यू नो आवर लिमिट्स, आउट ऑफ आवर रिसोर्सेज, सो मुझे नहीं लगता कि हम कोई मैसेज दे पाएंगे या हम किसी की मदद कर पाएंगे। लेकिन द मैसेज ऑफ दिस प्ले इज दैट you cannot live a fulfilled life until you help। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कि बच्चे अपने, ये जो लड़का है, ये जो ओल्ड मैन था when he was a child, he saw his mother dying in a ditch। अब ये एक सीन है इसके अंदर, आप में से बहुत सारे लोग हैं including me, those who can't help their parents because we feel that you know they have their own life। यहाँ पे मुझे एक चीज याद आ रही है, मैं शेयर करना चाहूंगा। देखिए एंड्रिया डेल साटो, कितने लोगों को पता है एंड्रिया डेल साटो एक पोएम है? एंड्रिया डेल साटो ब्राउनिंग की पोएम है। आपको मालूम होगा कि एंड्रिया डेल साटो के अंदर एक पेंटर दिखा रखा है, और वो पेंटर जो है वो लुक्रीजिया अपनी वाइफ के साथ रहता है, जो कि एक मॉडल है, और किस तरह से वो अपने आर्टिस्टिक सक्सेस के लिए अपना घर छोड़ता है, और बाद में वो जो उसकी वाइफ है, शी गेट्स एंगेज्ड विद समबडी एल्स, ओके, एंड देन ही कम्स एंड ही फील्स दैट यू नो ही इज मैकेनिकली टू मच perfect but spiritually totally away, barren, and cannot reach Michelangelo and Raphael and you know all the other painters whom there comes Leonardo da Vinci, उनके साथ वो अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकता। सो मैं इसको लिंक करता हूँ यहाँ पे कि ये जो प्ले हम पढ़ रहे हैं, उस प्ले को अगर आप बहुत डिटेल में जाकर के और एनालाइज करोगे तो इसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि योर रीच टुवर्ड्स द अदर ह्यूमन बीइंग, ओके, दैट has become limited and that is giving you meaninglessness in life। So ultimately if you want to get meaning, अच्छा इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि who is this orator who is coming, क्योंकि जितने भी prophets हैं, चाहे वो आप इस्लाम में ले लीजिए, चाहे वो क्रिश्चियनिटी में ले लीजिए, जितने भी संत हैं हिंदुओं में ले लीजिए, they are unable to teach you any message, okay। हाँ श्वेता कुमारी, मैंने रॉबर्ट ब्राउनिंग की एंड्रिया डेल साटो का रेफरेंस दिया है यहाँ पे, that mechanical expertise, mechanical perfection does not mean that you are spiritually rich or spiritually thriving people। So what I was conveying के आपको पूछ सकते हैं कि इसमें जो एक ओरेटर आने वाला है, one who will give the ultimate message of the old man, लेकिन वो मैसेज देने में कामयाब नहीं होता है। In the same manner जैसे waiting for Godot में, Godot they are waiting but that Godot never comes। Godot never comes का मतलब क्या होता है कि you are waiting for a particular person, you are waiting for a particular message that will never be delivered, any supernatural being will never come, that is only present in the mythological books, okay। For you, I think for your reality, you have to become a person who is sensitive, charitable, only then if you help others, if you reach out to the others in their need, you will be able to give meaning to your life, ठीक है। सो
ये पोस्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर, अच्छा ये मैसेज और कौन किस बड़े राइटर ने दिया है? यू आर ऑल अवेयर अबाउट दैट टी.एस. एलियट इन हिज फेमस पोएम द वेस्टलैंड हैज गिवन द सेम मैसेज दैट यू हैव टू बी कंपैशनेट, you have to be charitable and you have to control yourself. If you keep saying and if you अगर आप ध्यान से देखें तो all these writers, though they are writing in West, but somehow they are taking meaning from the eastern side, eastern religions. क्योंकि हमारे यहाँ पे ये कहा गया है इस हिंदू रिलीजन में, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं हिंदू हूँ, आपको सबको मालूम है कि all these great writers somehow they are taking their meanings from the Hindu scriptures. They are saying that ultimately you have to connect yourself with human being. अच्छा बताइए, आपको E.M. फोस्टर का वो नॉवल याद है जिसके अंदर एक फ्रेज पूरे नॉवल में दोहराया जाता है, दैट इज ओनली कनेक्ट? बताइए कौन सा नॉवल है? मैं बिल्कुल वेट करूंगा इस आंसर के लिए. विच नॉवल ऑफ E.M. फोस्टर हैज अ थीम ओनली कनेक्ट? ये क्वेश्चन भी 3-4 बार आ रखा है नेट के अंदर. बताइए, ओनली कनेक्ट. I will wait, you can Google and tell me. Which E.M. Foster's novel has a recurrent theme of only connect? I'm waiting for your answer. Which is the theme of, almost all the great literature of, the Western world, whether France, suspension in absurd drama. Suspension in absurd drama. I don't understand, Swati, what you want to convey. I'm sorry. You have written something, but I don't understand what you want to convey. So I'm waiting for your answer. Write down this question. If you search the answer of this question, you will find it there. You may find it in the exam, coming exam also. Only connect. Which novel has the theme only connect? In this novel, A Passage to India, wrong answer. कुंदन, आपका आंसर गलत है. Only connect. Eastward Ho, श्वेता ने करेक्ट आंसर दिया. हो की स्पेलिंग गलत है, HO ओनली हो, HOE नहीं है. Eastward Ho, करेक्ट. There is a story of 3 families in this novel. करेक्ट आंसर. चलिए मैं आगे बढ़ता हूं. ठीक है, मैंने ये प्ले काफी हद तक आपको डिस्कस कर लिया है. लैक ऑफ कम्युनिकेशन इसकी थीम है. एब्सर्ड कंडीशन ऑफ ह्यूमन बींग्स लाइफ इसकी कंडीशन है. सर्कुलर पे भी थोड़ा सा लेक्चर दे देता हूं. दैट प्रेजेंट जो है दैट इज इंपॉर्टेंट. ओके, योर प्रेजेंट इज इंपॉर्टेंट. मेमोरी का लैप्स इस प्ले में बार बार दिखाया गया है, दैट यू कैन नॉट रिलाई ऑन मेमोरी. ठीक है, day before yesterday I was also talking about memory and lapse of memory. कि memory is unreliable. Okay, religion is unreliable. One thing which is reliable is your present. Clear? So you should live your present. ठीक है, और ये इस प्ले के अंदर इसीलिए इस प्ले के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग भी आता है जिसमें वो कहते हैं कि फाइनली वी हैव रीच्ड. तो फाइनली टॉक्स अबाउट या उसमें आता है एट द एंड वी हैव रीच्ड. मतलब जब वो इस टापू पर आकर रहने लगते हैं तब कई डायलॉग है उस प्ले में. तो फाइनली और एंड का मतलब आपको पता है, एंड एंड रीच्ड का मतलब स्टार्टिंग. सो स्टार्टिंग इज एंड 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 इज स्टार्टिंग. इट्स अ वेरी कम्बरसम थीम ऑफ दिस प्ले. ठीक है, और साइक्लिक नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, साइक्लिक नेचर ऑफ टाइम. क्योंकि आपको पता है थीम ऑफ एब्सर्ड या जो एग्जिस्टेंशियलिस्टिक प्लेज होते हैं, इनमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि जस्ट इमेजिन करो एक बार के लिए कि वट एवर वी आर लिविंग द लाइफ, वी हैव अवर ओन एस्पिरेशंस, वी हैव अवर ओन inclinations, we have our own desires, we are waiting for certain things. Don't you think like generation before our forefathers lived the same kind of life, and the future generation will live the same kind of life? It means as such nothing changes. Okay, so existential drama or novel talks about absurdity of human condition. हमेशा याद रखिएगा, इस पे कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको 2-3 बातें याद रखनी है. जैसे हम ग्रैहम ग्रीन के नॉवेल्स पढ़ते हैं, तो ग्रैहम ग्रीन के नॉवेल्स में इफ यू जस्ट सी, जैसे हम प्लेग नॉवल पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा उसमें जगह जगह डेथ. ओके, जगह जगह महामारी के, पैंडेमिक्स के, एपिडेमिक्स के सीन्स आते हैं, डेथ के सीन्स आते हैं, वल्चर्स के सीन्स आते हैं, स्टेंच के सीन्स आते हैं, बदबू के सीन आते हैं. मतलब ओके, ऑलवेज एवरीवेयर वी फाइंड दैट द लाइफ हैज बीन शोन सिंबॉलिकली एब्सर्ड.
ओके, एंड ह्यूमन लाइफ में भी कहीं कुछ नथिंग इज हैपनिंग, नथिंग सिग्निफिकेंट इज हैपनिंग, ऐसा दिखाने की वो कोशिश करते हैं। तो जितने भी एग्जिस्टेंशियल प्लेज हैं, आप उनमें ये नोटिस करोगे कि राइटर्स वांट टू कन्वे अ मैसेज इन अ वेस्टर्न कल्चर, दोज हु आर हाईली सीरियस पर्सन, इंटेलेक्चुअल पीपल, कि कहीं इस लाइफ के अंदर कुछ भी मीनिंगफुल नहीं है। ठीक है, और इसमें एक दो क्वेश्चन और बनते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि पूरे प्ले में ये जो हस्बैंड है, जो मैंने बताया इसमें दो ही कैरेक्टर हैं मेनली। ओल्ड मैन जो है वो अपनी वाइफ को सैमी रेमिस बोल के पुकारता है, बार बार लिखो सैमी रेमिस, SEMIRAMIS, सैमी रेमिस। अब सैमी रेमिस कौन है, लिखो लेजेंडरी फर्टिलिटी गॉडेस है सैमी रेमिस, SEMIRAMIS। Semiramis is a legendary fertility goddess, queen of Assyria। ठीक है, अब देखो ये फर्टिलिटी गॉडेस है, तो कितनी आयरनी है इसमें कि वो गॉडेस कह रहा है उसको, बट शी इज अ ह्यूमन बीइंग, ओके, एंड वो फर्टिलिटी गॉडेस है, लेकिन उसके खुद के कोई बच्चा नहीं है। जो भी बच्चे की वो बात करें, दैट इज ऑल इमेजिनरी इन देयर माइंड। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया इसमें, अच्छा एक और चीज इसमें वी कैन लिंक, इफ यू रिमेंबर वेटिंग फॉर गोडो, चलिए बताइए उसमें लकी लकी को एक कैरेक्टर है ना लकी, देखो उसमें व्लादिमीर, एस्ट्रोगन, लकी और पोजो, चार कैरेक्टर्स हैं, और एक शेपर्ड बॉय है जो बीच बीच में आता है, और एक इमेजिनरी कैरेक्टर है गोडो। दैट इज द सेटिंग ऑफ यू नो, और वो जो सेटिंग है उसको भी कैसी है आपको पता है, एक यू नो अनडिसाइफरेबल क्रॉस रोड्स, यू नो विच कैन बी एनीवेयर। सो इसमें भी टापू दिखा रखा है विच हैज नो रोड एंड ऑल, यू नो कैन बी एनीवेयर। और मुझे तो बल्कि इसमें हिंदू थीम लगती है, क्योंकि हम जम्बू द्वीप पे रहते हैं, आपको पता है भारत को जम्बू द्वीप कहा जाता है, इट्स सराउंडेड बाय वाटर यू नो ऑल अराउंड। तो उस प्ले में भी कौन से वाले प्ले की बात कर रहे थे बताओ, हम लोग बात कर रहे थे वेटिंग फॉर गोडो। उसके अंदर भी लकी को जैसे ही वो टोपी पहनाते हैं तो ही टॉक्स यू नो फिलोसॉफिकल रम्बलिंग्स, वो फिलोसॉफिकली बट बहुत कुछ बोलता है, पूरे एक पेज तक वो बोलता रहता है, और जैसे ही वो उसकी टोपी उतारते हैं ही बिकम्स साइलेंट। इट मीन्स वॉट एवर फिलोसफी थ्रू आउट द वर्ल्ड, जैसा कि इस प्ले में दिखाया कि यू नो एन ओरेटर वांट्स टू कम बट दैट ओरेटर इज साइलेंट, म्यूट, और वो जो मुंह से जो भी निकालता है इज अनडिसाइबरेबल, एंड वट एवर ही राइट्स इज ऑल्सो अगैन कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाई एनीबडी। सो व्हाट इज द मैसेज बीइंग कन्वेड, ये बताने की कोशिश की जा रही है कि एनी प्रॉफिट, एनी मैसेज स्पिरिचुअली और से थ्रू एनी बुक ऑफ गॉड एंड गीता, महाभारत, नो मैसेज कैन बी कन्वेड टू यू फ्रॉम वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, ये कोई आपको कोई मैसेज नहीं दे सकता, आपको अपना मैसेज खुद ढूंढना होगा। यू हैव टू मेक योर लाइफ मीनिंगफुल, आपको अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाना है, और वो बनाना है चैरिटी से। ठीक है, और ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। इस प्ले के अंदर जितनी भी चीजें मुझे लग रहा है कि आपको आ सकती है, सेमी सर्कुलर के बारे में भी बता दिया, स्टैटिक लाइफ है। अच्छा, इनका स्टैग्नेशन से क्या मतलब है, दैट दे आर लिविंग अ मीनिंगलेस लाइफ, लाइफ इज स्टैटिक। जो मैंने अभी बताया कि हम लोग खाना खाते हैं, कमा के ले आते हैं, रिचुअलिस्टिक लाइफ हम जीते हैं, यू नो। अच्छा, एक बार इमेजिन करो कि इफ वी डोंट हैव रिचुअल्स इन आवर लाइफ, हाउ एब्सर्ड रियली इट विल बिकम। सोच के देखो, भगवान कोई दर्शन नहीं देता है, हम किसी दूसरे के मुंह से सुनते हैं हमेशा, पता है। हालांकि आई एम एन इंडियन एंड अ वेरी स्टॉन्च बिलीवर इन गॉड एंड अ वेरी थीस्ट काइंड ऑफ पर्सन, but still somehow there is an effect of these existentialist philosophy and drama on me also. Sometimes I feel that मैं कई बार पूजा बहुत करता हूँ और फिर बीच में मेरी पूजा रुक जाती है, उसका कारण होता है यू नो दैट आई स्टार्ट यूजिंग माई रैशनल माइंड। ठीक है, तो इसमें ऐसा दिखा रखा है कि हमारी जो लाइफ है वो बड़ी स्टैटिक है, इसीलिए वो स्टैग्नेशन का रेफरेंस आता है पूरे प्ले के अंदर। ओके, और वो एक दूसरे को रिचुअलिस्टिक स्टोरीज सुनाते रहते हैं, लड़ते रहते हैं एक दूसरे से हल्का हल्का। तो अगर हमारी लाइफ में रिचुअल्स नहीं होंगे, स्वाति मैंने बता तो दिया है, तुम गायब हो गई थी बीच में। ओनली कनेक्ट जो है वो E.M. फोस्टर का ईस्टवर्ड हो नाम का जो नॉवल है उसमें आता है। और ओनली कनेक्ट का मतलब क्या है कि यू बिकम बिट चैरिटेबल, जस्ट स्टार्ट कनेक्टिंग योरसेल्फ। देखिए, जिस मोहल्ले में मैं रहता हूं, मैं एक बार अभी लॉकडाउन में जब सब मोस्टली छत पे आ जाया करते थे शाम को, तो एक दिन मैंने सामने जो कोई अनजान लोग रहते हैं उनसे हाई किया, तो पता है दे डिड नॉट वेव बैक, दे डिड नॉट वेव बैक।
और वो उन्होंने उधर मुंह करके चले गए कि ये अनजान आदमी मुझसे क्यों बात कर रहा है. सेकेंड एग्जाम्पल आई गिव, आई रेड समवेयर that in a park, you know, you are jogging and you just pass a smile to an unknown person. Mostly, suppose there are two people, they will smile back. Sometimes they won't smile back, but they will look at each other कि ये अनजान आदमी, this unknown person, you know, why is smiling at me? It means, you know, we don't get connected with each other. Okay. And our life is static, present is circular in repetitive. Circular मतलब what goes round comes round, what goes round comes round. यही हो रहा है रोज, daily, you know, we live the same kind of life and we keep waiting for something good will happen in our life. Okay, sometimes it happens, sometimes it does not happen. Okay, so this cyclic nature of life has been you know, hinted here in this drama, in Waiting for Godot also, in almost all. और कई ड्रामाज में बड़ा अजीबोगरीब चीजें दिखा देते हैं, कई ड्रामाज में बहुत ज्यादा वायलेंस दिखा देते हैं. So don't you think on television we are just sitting to look at the violence in the form of rape, violence in the form of, you know, murder, violence in the form of, you know, atrocities of army and police, war. अब देखिए टीवी के ऊपर या तो हम लोग किस चीज को देख के खुश होते हैं, either we are happy by looking at the emotional states of the other people. इसीलिए ये पेपरार्जी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं. वो हमें कौन ड्रग ले रहा है, कौन क्या कर रहा है, यू नो, सेंसिटाइजेशन ऑफ एवरीथिंग. हमें हर वक्त कुछ ऐसा सनसनीखेज दिखाने की कोशिश की जाती है, यू नो, दैट वी गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट. सो ये हमारी लाइफ को एक मीनिंग देना मान लिया गया, बट दैट इज नॉट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ लाइफ. ठीक है. अच्छा, अब आ जाइए फटाफट से. अब लिखिए सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज सिल्विया प्लैथ. लिखो फटाफट से, हो सकता है आपको सिल्विया प्लैथ पे. सिल्विया प्लैथ, जिनका द बेल जार नॉवल बहुत फेमस है. सिल्विया प्लैथ, वन हु वाज एन अमेरिकन राइटर. सिल्विया प्लैथ हु वाज द वाइफ ऑफ द पोएट लॉरिएट टेड ह्यूज. Sylvia Plath, who is famous for writing, famous for committing suicide. Sylvia Plath, famous for writing Lazarus, you know, इनका एक कलेक्शन का नाम है एरियल, एक कलेक्शन का नाम है शायद उनका. ठीक है, तो मैं आज एरियल कलेक्शन की बात करूंगा. कोलोसस, सॉरी, एक कलेक्शन का नाम है कोलोसस, एक कलेक्शन का नाम है एरियल. एरियल कलेक्शन लिखो, एरियल कलेक्शन. इसमें बहुत सारी पोएम्स हैं. It was published after her death, posthumous publication है इसका. बहुत सारे लोग चले गए हैं, उनको लेक्चर में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है, लेकिन I know that serious students are still listening to me. एरियल कलेक्शन जो है वो 1965 में पब्लिश हुआ था. It was published after her death, after 2 years of her death, published by Ted Hughes. उसकी 5 पोएम्स का मैं रेफरेंस दूंगा आपको. लिखो, एक पहली पोएम है लेडी लेजरस. छोटा सा लेक्चर है ये. Lady Lazarus. This is a poem written by Sylvia Plath. In which collection? Ariel. Ariel was published in 1965 after her death. इसमें it is a Holocaust poem. Holocaust किसको बोलते हैं? वो जो जर्मनी में हिटलर ने यहूदी लोगों को, जूस लोगों को, 5 लाख लोगों को मारा था, उसको होलोकॉस्ट बोलते हैं. ठीक है. तो इमेजेस ऑफ वर्ल्ड वॉर, बहुत ज्यादा क्रूअल ब्लड शेड की, वर्ल्ड वॉर की इमेजेस इनकी पोएम्स में आती है. एंड लेडी लेजरस, आपको पता है कि बाइबल में लेजरस का रेफरेंस आता है. लेजरस इज अ पर्सन, यू नो, हु वाज रिजरेक्टेड बाय क्राइस्ट. एक डेड पर्सन है जिसको क्राइस्ट ने जब टच किया तो ही केम टू लाइफ. ओके, तो राइटर ने यहां पर अपने आप को लेडी लेजरस माना है. ओके, एंड देयर शी टॉक्स अबाउट हर 3 अटेम्प्ट्स ऑफ सुसाइड. एंड जितनी बार भी वो बच जाती हैं, वो कहती हैं कि इट्स नॉट मिरेकल, बल्कि इट्स अ रिजरेक्शन. ओके, and there she compares herself with the phoenix. सबको पता है phoenix क्या है? Everybody knows that phoenix is a mythological bird, one who dies, one who is male as well as female and dies, you know, by burning himself, and from the ashes there comes another bird. Clear? And one who lives for 500 years. This is the myth of phoenix. So this is all about Lady Lazarus. Second poem का नाम लिखिए tulips. ट्यूलिप्स आपको पता है सफेद रंग के फूल होते हैं. तो मेरे ख्याल से हॉस्पिटल की इमेजरी आती है जिसके अंदर. लिख लीजिए, इन द पोएम ट्यूलिप देयर कम्स द इमेजरी ऑफ हॉस्पिटल. हॉस्पिटल की इमेजरी कैसी होती है? वेयर देयर आर वाइट बेड शीट्स, यू नो, एंड पीपल आर क्वाइट इनसेंसिटिव टुवर्ड्स देयर, यू नो,
patients, nurses and doctors and all. So the writer has created a scene जिसमें how a patient can feel. ठीक है. Ariel, third poem का नाम लिखिए Ariel. You all are aware that Ariel is a character created by Shakespeare in The Tempest. Okay, and then later on Ariel was used by Alexander Pope also in his poem Rape of the Lock. Okay, but here Ariel is the name of the horse. इस पे आपको क्वेश्चन आ सकता है. Ariel जो सिल्विया प्लैथ थी उनके घोड़े का नाम था. ठीक है, जिस पे वो सुबह सुबह रोज सवारी करने जाया करती थी. ठीक है. एंड एक पोएम का नाम लिखिए डैडी. डैडी इज अगेन अ वेरी फेमस पोएम. आपको मालूम होना चाहिए कि उनके फादर जो थे, जब वो 8 साल की थी तब उनकी डेथ हो गई थी. ऑटो प्लैथ उनका नाम था. ठीक है. और इन दिस पोएम डैडी देयर कम्स द रेफरेंस ऑफ स्वास्तिका. चलिए बताइए, स्वास्तिक पता है ना क्या होता है? वो जो हम गणेश जी बनाते हैं ना ऐसे, एंड दैट उसको फिलफॉट भी बोलते हैं. स्वास्तिक इज द साइन. बताइए किससे रिलेटेड है वो? हिटलर से रिलेटेड है. उसको नाटजिज्म से रिलेट किया जाता है. इन वेस्टर्न कल्चर अगर मान लीजिए आपके घर के बाहर स्वास्तिक चिन्ह बना हुआ है, देन दे विल रिलेट यू विद दिस हिटलर, ऑस्ट्रिच. एंड तो आपको पता होना चाहिए, देयर कम्स द रेफरेंस ऑफ शी कंपेयर्स हर फादर विद स्वास्तिका, विद नाटजिज्म. ठीक है. और वो अपने आप को उस प्ले के इस पोएम के अंदर जूस से कंपेयर करती है और अपने फादर को वो, तो इस तरह की एक इमेज इसमें आती है. इस पे क्वेश्चन आ सकता है आपको. ठीक है. और दूसरी एक पोएम लिख लीजिए, 5वीं पोएम, द म्यूनिक मैनिकिन्स. MUNICH, म्यूनिक मैनिकिन्स. MANNEQUINS. अच्छा, कितने बच्चे क्लास में जिनको मैनिकिन्स का मतलब पता है? यस और नो में जवाब दो. डू यू नो द मीनिंग ऑफ मैनिकिन? द म्यूनिक मैनिकिन्स सिल्विया प्लैथ की बहुत इंपॉर्टेंट पोएम की कैटेगरी में आती है. आर यू अवेयर अबाउट द टर्म मैनिकिन? नहीं मालूम. मैनिकिन होता है वो जो पुतला, वो जो एक मॉडल, एक डमी बना के रख देते हैं ना शोरूम्स के सामने, जिसपे कपड़े पहनाए जाते हैं. तो उस जमाने में मैनिकिन मॉडल्स को मैनिकिन्स कहा जाता था. तो म्यूनिक मैनिकिन्स का मतलब है, एक बार क्या हुआ कि ये म्यूनिक घूमने गई थी और वहां पे इनको इंसोम्निया हो गया था. इंसोम्निया समझते हो? जैसे कल मैं क्लास नहीं ले पाया बिकॉज मुझे इंसोम्निया हो गया था, रात भर मैं जागता रहा और मुझे बहुत अर्ली इन द मॉर्निंग नींद आई. तो म्यूनिक मैनिकिन्स में ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं. इसकी फर्स्ट लाइन बहुत फेमस है. दिस पोएम इज वेरी फेमस एज अ फेमिनिस्ट पोएम. लिखो, perfection is terrible. I'm talking about the first line of this poem, the Munich Mannequins. Perfection is terrible. It cannot have children. Perfection is terrible. It cannot have children. Okay? मैं फिर से बोलता हूँ. I'm talking about the first line of Mannequin, the Munich Mannequins, which is very famous. Perfection is terrible. It cannot have children. Clear? अच्छा, इसमें ये ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि आप देखिए, चलिए एक बात बताइए, आपने नोटिस किया है मोस्ट ऑफ द मॉडल्स और से हीरोइंस, दे हैव अ वेरी अनसक्सेसफुल फैमिली लाइफ. जवाब दीजिए मुझे. Have you ever come across, have you ever read any article that these singers, these models, these heroines, these public figures, particularly these politicians also, those women who have given themselves to public, they mostly have a very unsuccessful family life. Why? So these questions have been answered and tried to answered in this poem. So this is a poem which is quite feministic. क्योंकि जब आप मॉडल बनती हैं, एक लड़की जब मॉडल बनती है, तो आपने नोटिस कर लिया होगा, अभी अभी हमारे सामने एक बहुत एक काइंड ऑफ डार्क सीक्रेट हैज बीन रिवील्ड दैट ये जितने भी फिल्म स्टार्स हैं ये ड्रग्स लेते हैं. तो ये इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, इतने खतरनाक ड्रग्स लेकर के, बिकॉज कॉमन मैन का जो कॉमन नेचुरल बॉडी है वो एक टाइम पर अपने आप मोटा होता है. So to maintain it, we have to take so many drugs. It means their body, their life is not a real life. Okay, they maintain it, and ultimately this kind of unhygienic life takes toll to their
नेचुरल फैमिली लाइफ एंड नेचुरल प्रोडक्टिव लाइफ। उनके बच्चे नहीं होते हैं, बच्चे होते हैं तो वो उनको पूरा टाइम नहीं दे पाते हैं। अंदाजा लगाइए कि सारा अली खान छोटी सी उम्र में ड्रग्स ले रही है। डू यू थिंक लाइक सारा अली हैज अ वेरी हेल्दी चाइल्डहुड? बताइए, पहले मुझे बताइए कि इसके फादर्स जो सैफ अली खान है, उन्होंने एक अमृता सिंह से शादी की थी जो उम्र में काफी बड़ी थी, फिर उनका तलाक हो गया। तो तुमको लगता है कि सिंगल मदर की जो संतान है वो एक नेचुरल, एक नॉर्मल संतान हो सकती है? हमें सोचना पड़ेगा इन सब चीजों के बारे में। देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं, या मटीरियलिस्टिक लाइफ भी नहीं, सुनील निषाद, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि जैसे जैसे मैं अपने बारे में बताता हूं कि जब अगर मैं आपको जो पढ़ाता हूं, ऐसा नहीं है कि आई जस्ट टीच यू, आई हैव इम्प्लीमेंटेड मैक्सिमम आइडियाज वट एवर आई हैव लर्न ऑन माई लाइफ ऑल्सो। लाइक जब मेरी बच्ची पैदा हुई और उसके 2-3 साल बाद मेरी वाइफ का गवर्नमेंट जॉब लग गया, मेरा नहीं लगा, तो मैं एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाता था। मैंने वो प्राइवेट कॉलेज को छोड़ करके इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया। उसका कारण बताता हूँ आपको, क्योंकि जब मेरी बच्ची 1 बजे स्कूल से आ जाती, मैं उसको स्कूल से लेके आता, तो मैं उसको रूम में बाहर से ताला लगा के चला जाता। मैं देखता कि ये सो जाएगी, टीवी देख लेगी। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि मैं बीच में घर आया तो वो खिड़की पे खड़ी होकर बाहर झांक रही थी, जाली होती है खिड़की में। तो दैट सीन आई कुड नॉट टॉलरेट एंड आई लेफ्ट माई जॉब इमीडिएटली and I started living with my daughter after school because my wife used to come late. वो किसी दूसरे शहर में जाती थी, अप डाउन करती थी वो। तो मैंने उसके बाद मेरे ख्याल से 20 साल है मैंने कोई जॉब ज्वाइन नहीं किया है, एंड आई हैव बीन रनिंग माई ओन इंस्टीट्यूट, मैनेजिंग इट अलॉन्ग विद with the school timings of my daughter, so that I am always present. Suppose मेरी वाइफ की छुट्टी नहीं है तो मैं स्कूल की, इंस्टीट्यूट की छुट्टी कर देता हूँ। जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं जो मेरे इंस्टीट्यूट में आते हैं, उन्होंने जरूर देखा होगा कि कई बार मैं अपनी बच्चियों को अपने इंस्टीट्यूट लेके आ रहा हूँ, वो मेरे साथ हैं। मैं ऐसे नहीं पाल सकता था अपनी बच्चियों को कि वो अपने पेरेंट्स के बिना पल रहे हैं। तो आपको पता है जो भी अपनी नौकरी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे करके अपने बच्चों को अकेला छोड़ देता है, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ न्यूक्लियर फैमिली दीज डेज। अब मैं कहां से अपने पेरेंट्स को कहूं कि मेरे घर में आके रहो, और लिटरली वो करते हैं बाकायदा। माई मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ एंड माई डैड एंड मॉम बोथ, दे कीप कमिंग रिपीटेडली, रिचुअलिस्टिकली टू माई हाउस। मैं उनको फोन कर देता हूं कि आपको आना पड़ेगा, बिकॉज हम दोनों बहुत बिजी हैं, बच्चों को संभालना ही पड़ेगा। और आप में से कई लोगों ने नोटिस किया होगा, इसीलिए मैं आपको एक सलाह भी देता हूं इन सब चीजों को सिखाते सिखाते, कि देखिए मटीरियलिस्टिक मत बनिएगा, या तो बच्चा पैदा मत करो, अगर बच्चा पैदा करते हो तो आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उनको पालो, ओके। और फिर उनको जताओ भी मत के क्योंकि कई बार गलती से मैं अपने मुंह से कह देता हूं कि मैंने तुम्हारे चक्कर में मैंने जॉब नहीं की, तो कई बार फिर मेरी बड़ी वाली बेटी कहने लगी है कि फिर आप हमें सुनाते क्यों। तो ये भी एक टसल का कारण बनता है आगे जाकर के, दैट यू हमारी जो इंसान की लाइफ है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। तो दीज ड्रामाज आर समहाउ दीज आर रिस्पॉन्सेज ऑफ दीज ग्रेट राइटर्स, दोज इंटेलेक्चुअल्स। उनको मैं आई एम सो सॉरी स्वाति, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं हीरो हूं, मैं तो कह रहा हूं एवरी कॉमन मैन इज अ हीरो। ये जो ड्रग्स लेते हैं हीरो हीरोइन, इनसे आज की जन, मैं कल ही किसी स्टूडेंट से बात कर रहा था, हमें ये पता लगना चाहिए कि कॉमन मैन हीरो है। एवरी कॉमन मैन, एक मजदूर भी हीरो है। हीरो वो सोल्जर है, हीरो एक दुकानदार है जो सुबह से लेकर शाम तक दुकान पर बैठ रहा है। आप हीरो हैं, हम हीरो हैं। हीरो कहीं पर्दे पर नहीं हो सकता। दोज आर शोइंग अस एन इल्यूजरी, एंड लिटरेचर के अंदर भी जितने भी हीरोज होते हैं वो इस तरह के नहीं होते हैं। समहाउ टू कम अप विद योर ओन हार्डशिप्स मेक्स यू हीरो। अच्छा, मैं एक और बात कहना चाहता हूं। सिल्विया प्लैथ ने सुसाइड कमिट किया। आपको नहीं लगता है टू कमिट सुसाइड मीन्स शोइंग इररिस्पॉन्सिबिलिटी? मैंने उनकी एमफिल में कई पोएम्स पढ़ी हैं। हमारे टीचर बहुत डिटेल में हमें पढ़ाया करते थे, एंड दे यूज्ड टू आस्क अस आवर रिस्पॉन्सेज ऑल्सो। लेकिन कुछ रिस्पॉन्सेज नाउ आई हैव कम टू नो। देखिए, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। सिल्विया प्लैथ छोटी छोटी बातों पे पोएम लिखती है कि आज उसको किचन में काम करना पड़ रहा है, आज उसको बच्चा पालना पड़ रहा है। आई कंसिडर कि अगर इन चीजों को तुम बर्डन समझ रहे हो, commit suicide, you don't have any commitment, you keep giving divorces to the people and all. इसका मतलब है हम ईस्टर्न लोगों को उन वेस्टर्न लोगों से कुछ ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। हमको सिर्फ इतना समझना है कि लाइफ इज वेरी प्रेशियस, ह्यूमन बीइंग इज a being of made of faults and faults. Nobody is infallible. हम सब गलतियां करते हैं।
तो एक ह्यूमन बीइंग अगर आपसे गलती कर रहा है तो उसको समझाने की कोशिश करो, खासतौर पे लड़कियां, अगर हस्बैंड पीटता है तो उसको छोड़ दो, उसको अपनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए वो सुधर सकता है तो उसको सुधारो, तलाक मत लो, तलाक मत दो, लाइफ को हैप्पीली जीने की कोशिश करो, बिकॉज यू नो वंस इट गोज इट विल नेवर कम बैक। तो आप मैं नहीं सिखा रहा हूं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, बिकॉज सिल्विया प्लैथ जो है वो एक कन्फेशनल पोएट है। पर कन्फेशनल पोएट का मतलब क्या होता है कि वो अपने पोएम्स के अंदर कन्फेशंस कर रही हैं। अब उनके कन्फेशंस को सुन करके वी ईस्टर्न स्टूडेंट्स वी फील दैट जरा सी प्याज छीलना भी उसको बर्डन लग रहा है। इट मीन्स दे आर इररिस्पॉन्सिबल पीपल, दिस इज माई डिक्टम टू देम, कि अगर आप बात बात पे शिकायत करते हो लाइफ से, इसका मतलब है कि आप दैट इज अ ह्यूमन रिस्पॉन्स, लेकिन इसका मतलब है कि यू डोंट अंडरस्टैंड ह्यूमन लाइफ, ओके, एंड दे कैन नॉट बी आवर हीरोज हु कमिट सुसाइड्स। तो हमें इनकी पोएम को पढ़ते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि ठीक है, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ फीमेल, वट एवर बर्डन्स शी मस्ट हैव फेस्ड। अच्छा, इसमें हो सकता है जो बहुत सिंसियर स्टूडेंट कमेंट लिखेंगे कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, दैट यू आर अ मैन एंड यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द प्लाइट ऑफ अ वुमन। नो, ऐसा नहीं है, मैं वुमन की प्लाइट समझ सकता हूं, क्योंकि जो और सेक्रीफाइस मोस्टली औरतें करती हैं वो जीवन में मैंने किया है। ओके, मैंने अपने बच्चे पाले, मैंने उनकी पोटी धोई है, मैं जानता हूं। मैंने कभी भी टास्क को जेंडर की तरह नहीं लिया, और मैंने हमेशा से अपने आप को इस तरह से फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ लिंक किया है, एंड टुडे आई कंसीडर दैट आई एम अ सेटिस्फाइड ह्यूमन बीइंग। ठीक है, चलिए, तो मैं 2-3 बातें और बता दूं। लिखो एक पॉइंट कि रॉबर्ट लॉवेल ने इसका प्रेफेस लिखा था, एरियल का, रॉबर्ट लॉवेल, एंड there is a profound impact of Robert Lowell's poetry. Robert Lowell is also a very famous existential and confessional poet. Annie Sexton, ANNE, Annie Sexton का भी इन पे इन्फ्लुएंस रहा है। ठीक है, एनी सेक्सटन का भी इन पे इन्फ्लुएंस रहा है। अभी मुझे बहुत सारी बातें कहनी है, बट अभी टाइम पूरा हो रहा है, क्योंकि आज मुझे जल्दी क्लास खत्म करनी है। आई कांट टेक यू फॉर 1.5 an hour। तो एरियल पोएम्स के बारे में मैंने आपको बताया, आप थोड़ा सा इनको स्टडी कीजिएगा। और आई डिस्कस्ड इन डिटेल यूजीन आयोनेस्को's प्ले द चेयर्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।